وہ موضوع ہے محبت رسول کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کس قدر کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بتائیں گے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ موضوع ہے محبت رسول کہ رسول سے محبت کیسے کی جائے اور کیوں ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو محبت جو ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ محبت کے بغیر انسان دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے، اس کی زندگی ادھوری ہے۔ تو اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو تو نسل انسانی کا سلسلہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہ ہو، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہ ہو تو ایک سماج، ایک پریوار اور ایک رشتے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو محبت یہ فطری جذبہ ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ صرف ہماری زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان سے بھی ہے، ہمارے ایمان سے بھی اس کا تعلق ہے۔ کیسے؟ ذرا دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کون نہیں جانتا ہے، اتنے جلالی صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے ان سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ سے اگر ان کا نام نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ ادھوری پڑ جائے گی، اس عمر فاروق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں اب تم کامل مومن ہو گئے ہو۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ جو ہے ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی۔ یہی نہیں اور آپ آگے رہیے، اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں جو نبی ہمارے لیے راتوں کو جاگتے تھے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے بستروں میں، تب نبی اٹھ کے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے اپنی امتیوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں حدیث کے اندر ہے کہ کل قیامت کے لیے سارے لوگ گھر کے نفسی نفسی میں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نفسی نفسی کے موقع میں ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، سب اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ صرف ایک ہی کلمہ جاری ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اللہم امتی امتی امتی۔ اللہ میرے امت ہے، اللہ میرے امت ہے، اللہ تو یہ بچا لے، اللہ ان کی گناہوں کو تو بخش دے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوگا میرے بھائی۔ تو اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ اس نبی سے کیسے صحابہ کرام محبت کرتے تھے؟ آئیے کچھ مثالوں سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ اس راستے میں جب جا رہے تھے ایک صحابی ادھر سے آ رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس سونے کی انگوٹھی پہ پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، انگوٹھی نکال کے پھینک دیتے ہیں زمین میں اور کہتے ہیں
तुम अपने हाथ में जहन्नम के अंगारों को लेकर घूम रहे हो, जहन्नम के अंगारों को लेकर घूम रहे हो, गोया कि ये तुम पर हराम है। इतना कहना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ जाते हैं, सहाबाए किराम की भीड़ लग जाती है, कहते हैं वो सोने की अंगूठी है, कीमती है, आप उसे उठा लें और बाजार में फरोख्त कर दें, बेच दें या घर में अपनी किसी औरत को दे दें। साहबी रसूल ने जवाब क्या दिया जानते हैं? कहा कि जिस चीज के ऊपर मेरे नबी की नापसंदीदगी की नजर पड़ गई हो, उस चीज को, जिस चीज को नबी ने फेंक दिया हो, मैं उस चीज को उठा लूं, ये नबी की सदाई का पहचान नहीं है मेरे भाई। ये कैसे हो सकता है? नबी ने जिस चीज को फेंक दिया है मैं उसे उठा लूं, चाहे कितनी कीमती हो वो हो, लेकिन मैं नहीं उठा सकता। ये मोहब्बत था मेरे भाई। और आगे आइए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला, जुम्मा का दिन था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद की तरफ आ रहे थे, एक पैर मस्जिद के अंदर, एक पैर मस्जिद के बाहर। देखिए किस तरह बात माना करते थे। इस हदीस से ये पता चलता है मोहब्बत कैसे सहाबाए किराम किया करते थे अपने नबी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद के अंदर एक शख्स खड़े थे, मस्जिद के अंदर जो शख्स खड़े थे उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे इजलिस मकानिक, ये शख्स अपनी जगह पे बैठ जाओ। इतना उस शख्स को कह रहे थे जो खड़े थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद की तरफ आ रहे थे, एक तरफ मस्जिद के अंदर, एक तरफ मस्जिद के बाहर। जैसे ही सुनते हैं इजलिस मकानिक, अपनी जगह पे बैठ जाओ, फौरन मस्जिद के गेट ही में बैठते हैं, एक पैर बाहर है, एक पैर अंदर है। अल्लाह के नबी देखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक पैर बाहर रखे हुए हैं, एक पैर अंदर, वहां बैठते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से मुस्कुराते हैं, कहते हैं अब्दुल्लाह मैंने तुम्हें नहीं कहा था बैठने के लिए, इस शख्स को कहा था जो यहाँ पे खड़ा है। अल्लाहु अकबर। फौरन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे कानों ने ये नहीं सुना था कि आप उसे कह रहे हैं, मेरे कानों ने सिर्फ ये सुना था इजलिस मकानिक, बैठ जाओ अपनी जगह पे, मैं वहीं बैठ गया। ये फॉलो है मेरे भाई, ये मोहब्बत है। किस कदर मोहब्बत, और इस मोहब्बत का तकाज़ा देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि मोहब्बत क्या चीज है। नबी से मोहब्बत कैसे सहाबाए किराम किया करते थे। नबी की बात आ जाए, सामने बेटा भी हो तो कुर्बान, सामने बाप भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि नबी की बात है। जरा देखिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का एक बेटा एक मरतबा जो है कि थके मांदे घर आते हैं, दौड़े दौड़े घर आते हैं और कहते हैं कि अबू जान घर में खाने के लिए कुछ है, बहुत तेज भूख लगी है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बेटे ठीक है, हांडी में है, खा लो। हांडी जैसे ही खोलता है उसके बाद देखता है, कहता ये भी कोई चीज है, ये भी खाने की चीज है, ये भी कोई चीज है, इतना कहना था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बगल में तलवार रखी हुई थी, मियान से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फौरन बेटे ने खाना शुरू कर दिया। कहा ये भी कोई खाने की चीज है, क्या है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कद्दू है। कद्दू भी कोई खाने की चीज है, इतना जैसे कहना था, फौरन तलवार को म्यान से निकालने की कोशिश करते हैं, आंख लाल पीला होता है, बेटे ने फौरन खाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़ा पसंद था। जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गोश्त बनता था तो कद्दू जरूर मिलाते थे, और गोश्त को पहले कद्दू को तलाश करके खाते थे, उसके बाद गोश्त को खाते थे, इतना प्यार करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने कहा ये भी कोई खाने की चीज है, इतना सुनना था, फौरन म्यान से तलवार को निकालते हैं और कहते हैं बेटे आज तुमने गुस्ताखी कर दी, मेरे नबी की सुन्नत से तुमने नफरत कर दी, मुंह बिगाड़ने की कोशिश किया, आज के बाद अगर मैंने ऐसा देख लिया, अल्लाह की कसम मेरी तलवार होगी, तुम्हारी गर्दन होगी, इसलिए कि ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। बेटा सामने है, ये नहीं कह रहा है मैं ये नहीं देखूंगा कटने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, बल्कि मैं ये देखूंगा कि नबी की सुन्नत से इराज करने वाली की गर्दन है। ये होना चाहिए मेरे भाई, मोहब्बत का तकाजा है ये, यही नहीं। और आगे आइए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का बेटा अभी ईमान नहीं लाया है, जंग बदर का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दे रहे हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, और बेटा काफिरों का साथ दे रहा है, इसलिए कि ईमान नहीं लाया है। और जंग बदर में कई बार ऐसे मौके आए कि
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वो कई बार अपने बेटे के तलवार के नीचे आ गए, बेटे ने चेहरा देखा छोड़ दिया, कई मरतबा हारे। उसके बाद जंग बदर मुसलमानों ने जीत लिया। जीतने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का बेटा जो है वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद बाप बेटा खाना खा रहे थे साथ में, बेटे ने मजाक में कहा कि अब्बू जान, जंग बदर के मौके में आपको याद है कई बार आप मेरे तलवार के नीचे आ गए थे, इतना सुनना था। कहते हैं कई बार आ गए थे लेकिन चेहरा देख के मैं छोड़ दे रहा था। फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं बेटे पूरे जंग बदर में सिर्फ मैं तुझे तलाश कर रहा था, अल्लाह की कसम अगर तू मेरे तलवार के नीचे आ जाता तो सबसे पहले मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा देता। मैं ये नहीं देखता करने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, बल्कि मैं ये देखता रसूल का दुश्मन है, मैं तुझे तलाश कर रहा था। अल्लाह अकबर। मोहब्बत देखिए मेरे भाई, मोहब्बत का ये तकाजा है। मोहब्बत का ये तकाजा थोड़े ना है कि नबी के नाम पे सीना पीटा जाए, नबी के नाम पे जो है कि जश्न मनाया जाए, नबी के नाम पे रंग बिरंगे कपड़े पहने जाए, ये मोहब्बत का तकाजा थोड़े ना है। इसी महीने में 12 रबीउल अव्वल भी है, उसमें कुछ लोग तरह तरह के पकवान पकाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े जो है कि पहनते हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ आएंगे। दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और वहां पे आपके यहाँ आएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे से मिलने के लिए गए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अंदर दाखिल ही होना चाह रहे थे कि दरवाजे में पर्दे पे नजर पड़ती है, रंग बिरंगे पर्दे। अल्लाह के नबी वापस आ जाते हैं लौट के। हज़रत फातिमा को जब पता चलता है रज़ी अल्लाह अन्हा तो कहती है मेरे अब्बू जान अंदर नहीं आए, बाहर से वापस चले गए, बात क्या है? अपने शोहर हजरत अली को रज़ी अल्लाह तआला को भेजते हैं जानने के लिए क्यों वापस चले गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला वापस जाते हैं पूछने के लिए, कहते हैं आप बेटे के घर आए, अंदर नहीं आए, वापस चले गए। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरा जी चाह रहा था अंदर जाऊं, लेकिन दरवाजे पे लगी पर्दे पे जब नजर पड़ी उस रंग बिरंगे पर्दे पे, मेरा जी नहीं चाहा, मैं वापस आ गया। जो नबी इतना इस कदर जो है कि रंग बिरंगी चीजों से नफरत करता हो, वो नबी आपके यहाँ आ जाएंगे। जो हफ्ते में एक दिन मुसलमान होते हैं उनके यहाँ आ जाएंगे, हो सकता है। एक चीज और, 12 रबीउल अव्वल बहुत लोग कहते हैं नबी की पैदाइश का दिन है। एक चीज जान लें, पैदाइश में बहुत इख्तिलाफ है, वफात में इख्तिलाफ नहीं है। सबका इत्तेफाक है 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए हैं, लेकिन पैदाइश में सिर्फ तारीख में नहीं महीनों में भी इख्तिलाफ है। कुछ अकवाल ऐसे भी हैं 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल। हाफिज अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है जो कहते हैं 10 मुहर्रम को। एक और जो है इमाम जुबैर रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। तो कई अकवाल हैं, राजे कौल किसी को पता नहीं, कई अकवाल इस ताल्लुक से, पैदाइश के ताल्लुक से, तो हमें भी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज ये, अगर हम मान भी लेते हैं और जश्न मनाते हैं ईद मिलादुन नबी, तो इस्लाम में कितनी ईदें हैं? अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला की रवायत देखिए, वो कहते हैं हम लोग ज़माना जाहिलियत में सिर्फ 2 ईद के दिन मनाते थे, ईद और बकरीद। इसके अलावा कोई हम लोग कोई ईद मनाते ही नहीं थे, 2 ही दिन मनाते थे। यहां से भी वही पता चलता है। और आगे आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बनाए गए। 2 साल खलीफा रहे। 2 साल में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल को आया ही होगा। एक भी तारीख दिखा दीजिए मनाने की। उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला 10 साल खलीफा रहे। 10 साल में 10 मरतबा आया होगा, नहीं तो 9 मरतबा तो आया ही होगा। एक दलील दिखा दीजिए, एक बार भी नहीं मनाया। उनके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला 12 साल खलीफा रहे। 12 साल में 12 नहीं 11 मरतबा तो आया ही होगा। एक दलील दिखा दीजिए। 12 रबीउल अव्वल की तारीख उठा के आप देख लेंगे, अल्लाह की कसम रोते खड़े हो जाएंगे। उस दिन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है और उस दिन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो आलम था, इस कदर रो रही थी, इस कदर रो रही थी, वो खुद बयान करती
करती है कि उस दिन की तकलीफ अगर किसी दिन के ऊपर डाल दिया जाए तो वो दिन रात में तब्दील हो जाए। उस दिन की तकलीफ अगर किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। वो तकलीफ का आलम था मेरे भाई। सहाबाए किराम बिखरे हुए थे, कोई इधर बैठे हुए हैं, कोई उधर बैठे हुए हैं, सब गमगीन में है, सब सोच बना रहे हैं, सब सोच में डूबे हुए हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, सब सोच में डूबे हुए हैं। ये गमगीन का हाल था मेरे भाई। उस दिन हम जश्न मनाते हैं, कहाँ की तारीख है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को ले लीजिए, 5 साल तकरीबन खिलाफत किए। 5 साल में 5 बार नहीं 4 बार तो आया ही होगा माह रबीउल अव्वल। एक तारीफ दिखा दीजिए, एक दलील दिखा दीजिए जिसमें आपने ऐसा किया हो। नहीं, एक चीज हम लोग और करते हैं, ताकत का मुजाहिरा करते हैं कि ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं, भले सही ना हो लेकिन ताकत दिखा रहे हैं। भाई ताकत दिखाना है तो ऐसे ही चीजों में अल्लाह के नबी ने ऐसा किया है कभी? मुसलमानों के ऊपर इससे भी खतरनाक दौर आए हुए मक्का के अंदर अल्लाह के नबी ने कभी ऐसा किया था? कभी बाजारों में जुलूस निकाला था, कभी मोहल्ले में जुलूस निकाला था? कभी नहीं निकाला था। इससे खतरनाक दौर आए थे नबी के जमाने में। हम कहते हैं ताकत का मुजाहिरा करने के लिए ये करते हैं। ताकत का मुजाहिरा करना है तो आज लास्ट डेट है, उसमें ताकत दिखाइए। वक्त बोर्ड में जिसमें स्कैन करके आपकी राय मानी गई है। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अभी तक राय पेश किया हो? यहाँ जितने हैं हमको लग रहा है 10% में नहीं होंगे जिन्होंने अभी तक वो राय पेश किया हो। ताकत का मुजाहिरा यहाँ पेश होना चाहिए मेरे भाई, तो लाजमी चीज है। हमारी चीजों को छीनने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे ताकत का मुजाहिरा करो। आप अगर ताकत का मुजाहिरा करना है तो वो कैसे? बाहर स्कैनर लगा हुआ है। अगर अभी आज लास्ट डेट है, लास्ट है, अगर अभी किसी ने नहीं किया है, मोबाइल आपके पास है तो स्कैन करेंगे। उसको स्कैन करने का तरीका बता दे रहा हूं। स्कैन कैसे करना है? गूगल में जाना है, गूगल में स्कैनर आएगा, स्कैन करना है, उसके नीचे लिंक आएगा, लिंक में क्लिक करना है, डायरेक्ट आप जो है जीमेल में चले जाएंगे। जीमेल में जाने के बाद अरे सेंड कर देना है, कुछ नहीं करना है। आपने राय पेश कर दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। ये ताकत का मुजाहिरा है। अगर आपने नहीं किया है तो करें। घर में जो मोबाइल है उससे भी करें, अपने मोबाइल से भी करें। यहाँ पे ताकत का मुजाहिरा पेश करें। और इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, हालात वो नहीं। अब मैं मोहब्बत रसूल पे फिर आता हूँ कि रसूल से मोहब्बत का तकाजा क्या है। अब आगे देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करना चाहिए जरा देखिए। जंग उहुद का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहुद में जो है कि बैठे हुए हैं और सहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी कर रहे हैं। और उसी जंग उहुद के मौके पर कबीला किनारिया की औरत की चार जो है कि आदमी उसमें मौजूद हैं। बाप भी है, भाई भी है, शोहर भी है, बेटा भी है। सब जो है जंग उहुद में लड़ाई लड़ रहे हैं और खुद सजदे में गिरी हुई है और दुआ कर रही है कि अल्लाह जंग उहुद में जो है कि मुसलमानों को फतह से हमकिनार करना। अल्लाह जंग उहुद में मुसलमानों का परचम को गिरने नहीं देना। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करना। सजदे में गिरी हुई है और 4 आदमी घर से जंग में शामिल है, सजदे में गिरी हुई है। जंग की तरफ से आदमी दौड़ता हुआ घोड़े को दौड़ाता हुआ आता है, सजदे से सर उठाती है। वो नौजवान खबर देने के लिए आता है, ए बिनारिया माँ, जंग के अंदर तेरा बाप जो है कि शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। कलेजे में चोट लगती है, दिल घबराता है। कहती है नौजवान, मैंने तुझसे अपने बाप के बारे में नहीं पूछा, अरे फातिमा के बाप के बारे में बताओ, वो कैसे हैं? कहता है कि वो सही सालिम है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सजदे में गिर जाती है, फिर दुआ करने लगती है। उसके बाद फिर दूसरा नौजवान आता है, जंग की तरफ से ये खबर लेकर आता है कि जंग के अंदर तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। कलेजे पे चोट लगती है, फिर जो है कि पूछती है, मैं अपने बेटे के बारे में नहीं, अरे आमना के लाल के बारे में बताओ, अब्दुल्ला के बेटे के बारे में बताओ, वो जंग के अंदर कैसे हैं? नौजवान कहता है वो सही सालिम है। फिर तीसरा नौजवान आता है, कहता है तेरा भाई जंग के अंदर शहीद हो गया। कहती है कि मैं अपने भाई के बारे में नहीं, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के भाई के बारे में पूछ रही हूँ,
वो कैसे हैं, उनके बारे में बताओ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो नौजवान कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सही सालिम है। फिर आखिर में एक नौजवान आता है, वो खबर देते देते रो पड़ता है, कहता है मेरी माँ जंग के अंदर जो तेरी जिंदगी को यानी तुम्हारी जिंदगी के साथ रहने वाला था, तुम्हारा यानी हर वक्त तुम्हारा साथ देगा, अब मुसीबत में तकलीफ में हर वक्त साथ देने वाला तुम्हारा शोहर था, वो भी जंग के अंदर शहीद कर दिया गया। कलेजे पे चोट लगती है, बेहोश हो जाती है, और शादी के बाद कहती है नौजवान जंग के अंदर बाप भी शहीद, जंग के अंदर बेटा भी चला गया, भाई भी चला गया, शोहर भी चले गए, अब मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं अपने नबी के चेहरे को देखना चाहती हूँ, मुझे जंग के पास लेकर चल। अल्लाह अकबर, जंग तक लेकर जाया गया। ऊँट के मैदान में जाती है, नबी के सदाइयों को देखती है। ज़ियाद इब्न सफन के ऊपर नजर पड़ती है, देखते हैं ज़ियाद इब्न सफन के जिस्म पे 75 तीर लगे हुए हैं, एक भी तीर जिस्म में खाने की जगह नहीं है। लोग कहते हैं कि इसे जख्मियों के खेमे में पहुंचा दिया जाए। ज़ियाद इब्न सफन का जवाब देखिए, कहते हैं कि मैंने आखिरी वक्त तक नबी की हिफाजत का वादा किया है, मुझे यहाँ से हटाइए नहीं, जब तक सांसें हैं मैं नबी की हिफाजत करूंगा। अल्लाह अकबर, ये नबी के सदाइयों को इस तरह लड़ते हुए जब देखती है, नबी की हिफाजत करते हुए देखती है, नबी के चेहरे पे जो है नजर पड़ती है, नबी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती है, चीख पड़ती है, कोई मुसीबत का जलल। अल्लाह, नबी के चेहरे को देख लिया, बाप की कुर्बानी भूल गई। अल्लाह, नबी के मुस्कुराते चेहरे को देख लिया, अल्लाह शोहर की शहादत को भूल गई। अल्लाह, नबी के चेहरे को देख लिया, अल्लाह बेटे के गम को भूल लिया, अल्लाह भाई के गम को भूल लिया। अल्लाह चार कुर्बानियां तू कबूल कर ले। अल्लाह मेरे नबी को सही साबित रख ले। ऐसे औरतें थी मेरे भाई, इस कदर मोहब्बत किया करती थी अपने नबी से। ये नबी के सहदाई है मेरे भाई, ये नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। ऐसे इस कदर जो है कि नबी से ये लोग मोहब्बत करते थे। यह नहीं, हम अपने नबी से क्यों मोहब्बत करें, क्यों करें? इसलिए भी करें कि रातों को जागते थे और अपनी उम्मत के लिए दुआएं किया करते थे। इसलिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए, हर नबी को अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुआ दिया कि उसकी कबूलियत की गारंटी अल्लाह ताला ने खुद लिया। दुआ की कबूलियत की गारंटी खुद लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर नबी ने उस दुआ को दुनिया में ही मान लिया, मैंने अभी तक उस दुआ को बचा के रखा है। उस दुआ का इस्तेमाल मैं क़यामत के दिन करूंगा, अपने गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश के लिए उस दुआ का इस्तेमाल करूंगा, मेरे उम्मतियों के लिए उस दुआ का इस्तेमाल मैं क़यामत के दिन करूंगा। क़यामत के दिन सजदे में गिर जाऊंगा, अल्लाह से गिड़गिड़ाऊंगा, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करूंगा, अपने उम्मतियों की गुनाहों की बख्शिश के लिए सजदे में गिर जाऊंगा और उस दुआ का इस्तेमाल करूंगा। इस दुआ के मुस्तहिक वही लोग होंगे जो तौहीद के ऊपर जिनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी को जो दुआ दिया गया था, उस दुआ की कबूलियत की गारंटी अल्लाह ने लिया। उस दुआ को अल्लाह के नबी ने दुनिया में नहीं मांगा मेरे भाई, औलाद चले गए दुनिया से, उस वक्त तक अल्लाह के नबी, उस वक्त भी अल्लाह के नबी ने जो है कि नहीं, उस दुआ का इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह के नबी को परेशान किया गया, सताया गया, अल्लाह के नबी के जो है कि साथी मारे गए, शहीद किए गए, लेकिन तब भी उस दुआ का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे नबी ने कहा कि उस दुआ का इस्तेमाल अपनी उम्मतियों के लिए मैं क़यामत के दिन करूंगा। किस कदर मोहब्बत मेरे नबी हमसे कर रहे हैं, तो हम अपने नबियों से मोहब्बत क्यों ना करें? ये नबी से हमें मोहब्बत का ये तकाज़ा है मेरे भाई। इस वजह से भी हमें मोहब्बत करनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहन्नम से बचाया। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जहन्नम से बचा रहा हूँ, कमर पकड़ के मैं तुम्हें खींच रहा हूँ जहन्नम से, लेकिन तुम लोग जो है कि जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो, बचने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं पकड़
कर जो है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम जाने पे लगे हुए हो, तो उस नबी से हम मोहब्बत क्यों ना करें? उस नबी से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, बेगुनाह मोहब्बत करनी चाहिए। नबी की सुन्नतों के ऊपर हमें अमल पैदा होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं, उन सुन्नतों को माने, उन सुन्नतों के ऊपर अमल करें। ये जो है कि मोहब्बत रसूल का तकाजा है मेरे भाई। यही नहीं, हम जो है इसी महीने में बहुत सारी बिदअतों को रफाक करते हैं, उन चीजों से भी हम बचे। एक चीज आप जहन में ले लें कि जो नबी खाने का तरीका, पीने का तरीका, सोने का तरीका, सुबह उठने का तरीका, बाथरूम में जाने का तरीका, बाथरूम से निकलने का तरीका, हर चीज का तरीका, खाना कैसे खाया जाए, खाना दस्तरखान में गिर जाए तो क्या किया जाए, हर चीज, छोटी छोटी चीजों का तरीका जिस नबी ने हमें बता दिया, नाउज़ुबिल्लाह, क्या वो नबी ये दिन भूल गए थे बताने के लिए कि 12 रबीउल अव्वल भी आएगा, मनाना तुम लोग, नाउज़ुबिल्लाह, क्या भूल गए थे? नहीं मेरे भाई। जब छोटी छोटी चीजों को अल्लाह के नबी ने बता दिया, उन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं किया, तो इतनी बड़ी चीज अल्लाह के नबी से कैसे मिस हो जाता? ये भी सोचने वाली बात है। तो सोचें, गौर करें और सही दीन पे आए, सही तरीका जो है उस तरीके पे अमल करें। हम लोग सोचते हैं कि नबी से मोहब्बत सहाबाए किराम भी करते थे, ताबईन भी करते थे। नबी से मोहब्बत करना है, लाजमी है, ईमान का एक हिस्सा है ये नबी से मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत में गुलू नहीं करना है, जितना कहा गया उतना ही करना है, उससे ज्यादा आप करोगे तो भी पकड़े जाओगे। तो जितना कहा गया है उतना ही करना है। नबी से मोहब्बत, मैं बार बार कह रहा हूं, ये ईमान का एक हिस्सा है, हमें नबी से मोहब्बत करना है। लेकिन जिन चीजों के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा है, उन्हीं चीजों के ताल्लुक से करना है। जिन चीजों के ताल्लुक से नबी ने हमें इशारा भी नहीं किया है, सहाबाए किराम ने इशारा भी नहीं किया है, उन चीजों से हमें जो है कि बचना चाहिए। कतई उन चीजों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम लोगों को इन सब बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में रख, ईमान हो, इस्लाम पे रख, अल्लाह हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। अल्लाह हमारे माशरे में जो भी बहन बेटियां शादी के उम्र को पहुंच चुकी हैं, अल्लाह तू उनके लिए कहीं से दीनदार लड़के का रिश्ता भेज दे। अल्लाह हमारे माशरे में जो भी नौजवान रिज़्क़ के तलाश में है, अल्लाह तू उनके लिए कहीं से हलाल रिज़्क़ अता कर। अल्लाह हमारे माशरे में जो बीमार है, अल्लाह तू उन्हें शिफा पहुंचा। अल्लाह जो परेशान हाल है, अल्लाह तू उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जो तंगदस्त हाल है, अल्लाह तू उनकी तंगदस्ती को दूर कर दे।